morning students. So chapter number 8 introduction to trigonometry is going on and today we will solve 10th part of question number 5. Now have a look at 10th part. In this 10th part we have three sides, left side, middle side and right hand side. That means two questions are given together. First of all we will have to prove left hand side equal to right hand side and secondly we will prove middle side equal to right side. मतलब कि दो questions का combo दे दिया आपको. That means ये भी tan square theta के इक्वल है और ये भी tan square theta के इक्वल है. That means they both are equal to each other also. ठीक है? First of all I am solving LHS. LHS is given 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. So do we have any identity for this? 1 plus tan square A can be written as sec square A and 1 plus cot square A can be written as cosec square A. So keep values in LHS. आपने 1 plus tan square A को replace किया sec square A से upon 1 plus cot square A को replace किया cosec square A से. कोई दिक्कत? आपने आइडेंटिटी साइड में लिखी थी, हमने ये आइडेंटिटीज अप्लाई करी है. Now can we write sec square A as 1 upon cos square A? Sec A is the reciprocal of cos A. So sec square A is the reciprocal of cos square A. Whole upon cosec square A can be written as 1 upon sin square A. ठीक है? अब फिर से वही चार चीजें आ गई हैं. ये साइड में आपको फॉर्मूला जरूर लगाना है. Sec A is equal to 1 upon cos A and cosec A is equal to 1 upon sin A. Now again we have these four terms. तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाएगी चीजें मल्टीप्लाई में. तो ये आ गया 1 upon cos square A multiplied by sin square A upon 1. तो sin square A multiplied by 1 gives sin square A upon cos square A multiplied by 1 will be equal to cos square A. We know that sin A upon cos A is equal to tan A. तो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा tan square A which is equal to RHS. तो इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया. बहुत सिंपली आप यहाँ एक जरूर लिखेंगे sin A upon cos A equals to tan A. So see with the help of identities, ये identities लगाने से क्वेश्चन कितना सिंपली सॉल्व हो गया. अब किसी के दिमाग में आइडेंटिटीज नहीं आई, कोई सोचे कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, याद ही नहीं आइडेंटिटीज किसी को, तो आप यहाँ पे tan स्क्वायर A को sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और cos स्क्वायर A को cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो. फिर उसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई करने से क्वेश्चन काफी शॉर्ट हो गया ये. ठीक है? अपनी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.4 के फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए आप जरा, वो सेम है. इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको. 1 plus tan square है अपॉन 1 plus cot square. इसकी को इवैल्यूएट करते हैं किसके इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू tan square. आएगा समझ में? अब इसी को मैं आपको सेकंड मेथड से करके दिखा रही हूँ. अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमें आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं. LHS को हमने लिखा 1 plus tan square A को लिखा आपने sin square A अपॉन cos square A अपॉन 1 plus cot square A को लिखा आपने cos square A अपॉन sin square A. Now what should be our next step? We should take LCM. LCM लेंगे आप तो आएगा cos square A into 1 cos square A plus sin square A into 1 sin square A होल अपॉन यहाँ आपने LCM लिया, LCM आएगा sin square A into 1 sin square A plus cos square A into 1 cos square A. अब देखिए sin square A plus cos square A is equal to 1 upon cos square A होल अपॉन sin square A plus cos square A again 1 upon sin square A. ये सेम चीज नहीं आगे देखिए, बिल्कुल सेम आ गया ना. यहाँ हम सेकंड स्टेप में यहाँ पहुंच गए थे बिकॉज डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया आपने, सीधा आंसर आ गया. यहाँ हमने जब कन्वर्जन किया तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन आंसर इससे भी क्या आ जाएगा tan square A ही आ जाएगा. या हो सकता है किसी के दिमाग में ये आए कि जब हमें इसको प्रूव करना है इक्वल tan square A तो आप sin और cos की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं.
अब होल अपॉन यहाँ एलसीएम आएगा 10 स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए इंटू 1 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 1। अब ये जब तीन टर्म्स आ गई हैं क्या होगा, ये वाली टर्म्स रेसिप्रोकल होकर ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर ए ऊपर आ गया अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए नीचे आ गया। ये कट गया, सेम टू सेम चीज आएगी, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS, जो RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहीं से आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया LHS को RHS के इक्वल। नाउ वी विल प्रूव हाउ टू सॉल्व दिस मिडिल साइड। अब हम मिडिल साइड को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि वो 10 स्क्वायर ए के इक्वल आए। नाउ सी, हम मिडिल साइड सॉल्व कर रहे हैं। मिडिल साइड, अब देखिए क्या दिमाग में आ रहा है आपके, मिडिल साइड में भी कोई ऑप्शन का नहीं, डायरेक्टली तो हमारे पास कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा ना, बिकॉज़ 1 - 10 वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर दिस और 1 - 40 के भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कंसेप्ट यहाँ दो आते हैं, या तो आप tan a को और cot a को कन्वर्ट कर लो sin और cos के फॉर्म में। tan a कैन बी रिटन एज sin a upon cos a एंड cot a कैन बी रिटन एज cos a upon sin a, या फिर वही सेम कंसेप्ट करें ना, जब RHS 10 की फॉर्म में आ रहा है तो क्यों ना इस cot a को ही 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वो भी ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 - 10a will remain as it is upon 1 - cot a को आपने लिखा 1 upon 10a होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर में आ गया है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज 1 - 10a होल अपॉन, यहाँ आपने क्या किया एलसीएम लिया 10a और 1 का एलसीएम कितना आया 10a। 10a मल्टीप्लाई बाय 1 10a माइनस 1 इंटू 1 1 होल स्क्वायर। वही सेम कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट, ये टर्म्स रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आपको मिलेगा 1 - 10a मल्टीप्लाई बाय ये 10a ऊपर आ जाएगा अपॉन 10a - 1 नीचे आएगा, होल स्क्वायर तो दिया हुआ है वो तो लगेगा ही। अब यहाँ देखिए, अगर ये चीज कट जाए तो अपना आंसर आ गया 10a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। लेकिन क्या ये दोनों चीजें सेम है, ये है 1 - 10a और ये है 10a - 1, both the things are same, or is there any difference in these two? डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है माइनस साइन का। अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें या फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तब ये दोनों चीजें सेम आएंगी। डायरेक्टली आप नहीं काट सकते बिकॉज बोथ आर नॉट एग्जैक्टली सेम। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 10a will become positive and 1 will become negative, isn't it? माइनस साइन कॉमन लेते ही 10a बन गया पॉजिटिव 1 बन गया नेगेटिव। साथ में जो मल्टीप्लाई बाय 10a आ रहा है वो एज इट इज आएगा अपॉन 10a - 1 will also remain as it is होल स्क्वायर कैसे कैसा अब कट गया ये। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचा -10a होल स्क्वायर। कोई इशू नहीं है, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव 10a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर a। इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड इट इक्वल टू RHS। हमने इसको भी RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। सिंपल है, देखो बिल्कुल, बस यही कंसेप्ट अलग था माइनस साइन कॉमन निकालने वाला। माइनस साइन कॉमन निकालने वाला कंसेप्ट दो क्वेश्चन में काम आया अपनी इस एक्सरसाइज में, एक तो 5th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में और इस 10th क्वेश्चन के इस मिडिल साइड में। आपने cot a को कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर था। ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में गई। बस यहाँ दिक्कत ये आई कि काटने से पहले आपने देखा दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे या तो न्यूमरेटर में से या डिनोमिनेटर में से तब दोनों चीजें सेम आएंगी। आपने माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, 10a इज पॉजिटिव नाउ एंड 1 विल बिकम नेगेटिव। माइनस साइन कॉमन लेने के साथ ही ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए। नाउ दीस विल बी कैंसल्ड आउट। -10a होल स्क्वायर गिव्स यू 10 स्क्वायर a। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पार्ट पूरा किया और 5th क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए।
नाउ लुक एट फोर्थ क्वेश्चन। आई थिंक जब उन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन के लगभग सारे पार्ट्स कर लिए हैं, एक फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट बचा है, वो अपन बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जब फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट डिस्कस हो गए हैं तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप बहुत ही इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट, ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड इट, हम सॉल्व कर चुके हैं पहले भी एक बार। कैन वी टेक 9 कॉमन फ्रॉम दीस टू? 9 कॉमन आने के साथ अंदर बचता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंड आइडेंटिटी, यस, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पे आ गया आपका आंसर 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 और ब्रैकेट में आप रीजन देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहां इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके अगर ये बोलूं, अगर क्वेश्चन ऐसे आता 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, देन कैन वी टेक 9 कॉमन? हमने 9 कॉमन लिया, व्हाट विल रिमेन इनसाइड? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम माइनस 1 रख दें या फिर आप माइनस साइन और कॉमन ले लें। दो कंसेप्ट है, या तो डायरेक्ट आपने लिखा 9 into -1 इक्वल्स टू -9, ब्रैकेट में रीजन दोगे बिकॉज़ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या फिर आपने क्या किया, इसमें आपने ये किया कि माइनस कॉमन और ले लिया, 9 तो ऑलरेडी कॉमन था, माइनस साइन कॉमन और ले लिया, तो आ गया -9 and what will remain inside? Sec square theta will become positive and tan square theta will become negative, which is equal to 1. So -9 into 1 equals to -9। तो ये ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे उल्टा cosec square theta minus cot square theta equals to 1 and cot square theta minus cosec square theta equals to -1। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। Now look at the second part of fourth question, 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta। अब यहाँ देखिए डायरेक्टली वैसे कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है टू चेक कि आंसर क्या आएगा। हम सॉल्व करते हैं। 1 plus tan theta can be written as sin theta upon cos theta plus sec theta can be written as 1 upon cos theta into 1 plus cot theta can be written as cos theta upon sin theta minus cosec theta can be written as 1 upon sin theta। सारे फॉर्मूलाज आप साइड में लिखेंगे कि क्या क्या आपने आइडेंटिटीज यूज करी है। नाउ व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप हियर? वी शुड टेक एलसीएम। अब हम यहाँ एलसीएम लेना चाहिए, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया cos थीटा, cos थीटा into 1 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। समझ में आया आंसर कैसे लिया? cos थीटा एलसीएम आ गया, इस डिनोमिनेटर के नीचे 1 है तो ये आ गया cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 cos थीटा into 1 cos थीटा प्लस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1 into sin थीटा sin थीटा, cos को cos से डिवाइड किया 1 into 1। इन द सेम वे यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले ली sin थीटा और यहाँ आएगा sin थीटा into 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, अब हमारे दिमाग में ये आएगा कुछ भी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं बन रहा तो बस सबका बस मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ये सोचें क्या कुछ छोटा कंसेप्ट यहाँ काम में आ रहा है, तो आप ये देखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पर भी आ रहा है और sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ भी आ रहा है। यहाँ +1 आ रहा है और यहाँ -1 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला की हेल्प से हमारी कैलकुलेशंस कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ भी अगर हम कोई फॉर्मूला लगा पाए, अगर फॉर्मूला कोई बन रहा है, ये नहीं जबरदस्ती फॉर्मूला बना दिया, अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है और हम यूज कर लें तो हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। तो बताइए क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया आपने यहाँ पे और हमने इस तरीके से लिखा इसको, इनको रख दिया आपने इस एक ब्रैकेट में और ये अलग से हो गया। देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा बोलो या sin थीटा प्लस cos थीटा बोलो, एक ही बात है, +1 -1। तो कांट बी अप्लाई फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, लग रहा है ना? फॉर्मूला बन गया यहाँ पे a प्लस b into a माइनस b which is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इस फॉर्मूला की हेल्प से अपना क्वेश्चन काफी शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो हम अप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन में ये फॉर्म आ रही है तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा बोल दीजिए या साइन थीटा cos थीटा बोल दो, एक ही बात है। कैन वी अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कीजिए अप्लाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हम यहाँ कर सकते हैं। देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है आपको, प्लस साथ में cos स्क्वायर थीटा भी मिल रहा है, उसको आपने साथ में लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, माइनस 1 प्लस 1 विल बी कट आउट, क्या मिला 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये कट गया, अपना आंसर आया 2। ओके, इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ गया 2। अब यहाँ मान लीजिए आपके दिमाग में अप्लाई नहीं हो रहा है, दिमाग में नहीं आया कि फॉर्मूला लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। cos थीटा को पहले आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर sin थीटा को उन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को उन तीनों से प्लस 1 को उन तीनों से मल्टीप्लाई किया अपॉन sin थीटा cos थीटा, फिर सॉल्व करके ओवरऑल लास्ट में यही मिलता, लेकिन थोड़ा सा वो कांसेप्ट लेंथी हो जाता है। यहाँ अगर किसी को फॉर्मूला समझ में नहीं आया कि फॉर्मूला कैसे बना, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उन्होंने जब इसको सॉल्व किया तो आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना ही होगा। ओके, नाउ लुक एट फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इट इज समवॉट सेम एज एन एग्जांपल व्हिच वी हैव डन अर्लियर। ऐसा एग्जांपल जो हमने किया था, अपनों को इवैल्यूएट करना है इसको कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, sec a plus tan a into 1 minus sin a। अब देखिए क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, sec a can be written as 1 upon cos a plus tan a can be written as sin a upon cos a। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 1 minus sin a will remain as it is because ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। यहाँ आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया cos a, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज 1 प्लस sin a into 1 minus sin a। अब बताइए अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं क्या होगा 1, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, 1 plus sin a into 1 minus sin a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square, यानी कि 1 square minus sin a whole square upon cos a into 1 cos a, 1 square is 1 minus sin square a upon cos a। अब बताइए 1 minus sin square a कोई फॉर्मूला है या कोई आइडेंटिटी है, तो 1 minus sin square a can be replaced by cos square a upon cos a। एक cos a से एक cos a कट गया, आंसर इज cos a। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आई थिंक कुछ समझ में आया होगा एक्सरसाइज 8.4 में आपको, और अगर समझ में नहीं भी आया तो प्लीज बेटा जो वीडियोस अभी आप लोगों ने देखी हैं इस दौरान इस एक्सरसाइज से उनको आप वापस देखिए, कई सारी चीजें क्लियर होंगी। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 10th क्लास, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने काफी चीजें सॉल्व कर ली हैं, तो अपना एक तो एग्जांपल में 15 बचा और उससे बेस्ड जो अपने 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट है वो बचा, व्हिच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। और कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें मुझे आपको बतानी है that we will complete very soon. Okay, so by that time please solve all these questions once again.